Hello everyone. Yesterday we had our webinar related to mentorship. After the webinar, many of you have already taken admission, and many of you, not less than 7 students, have messaged me asking for more clarity as far as the components of this program is concerned. Though I have highlighted in the webinar that there are many components, but certainly more clarity is needed. Therefore, I am bringing this video to give you exactly how the personal mentorship program for 2025 will progress. What are the components? So these are the components, the things that is written here are the components. I will elaborate a little bit about all these components. So the first component is your personalized study plan. Okay, see, every student has their weakness, has their strength. Based on the weaknesses and the strength, we will formulate a personalized study plan for the complete whole 1 year. Okay, and our purpose here will be, remember, our purpose here as far as the personalized study plan is concerned is to consolidate the syllabus. Remember, one of the major problem that students face, if you talk to any student who is appearing in mains, they will say one thing, that there is a lack of consolidation. Anyone who is writing mains, you can go and ask them, they will tell you the same story, that consolidation is the chief challenge, major challenge. So consolidation of the syllabus is important. So we will have a study plan that will be focused primarily on 2 things. Okay, number 1 is your revision. If you can't revise, you cannot remember. You have optional subject to remember. You have 10 general studies papers, different subjects to remember. So it's not an easy task, it's a behemoth task. बहुत बड़ा challenge है ये, छोटा challenge नहीं है. That's the reason why maximum time revision is needed. So in the study plan, our target will be minimum. Some people can go for more than this 10 times revision as well, based on, again, strength and weaknesses. All right, analysis of strength and weaknesses is very, very, very essential. Otherwise it will not yield result. I say it consistently. मैं बार बार कहता हूं, वजह ऐसे लेके आता हूं. ठीक है, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ वीकनेस हमें पता ही ना हो, अगर कोई डॉक्टर है इलाज कर रहा है, आप में प्रॉब्लम्स क्या है उसको हम अगर जाने ही नहीं और प्रिस्क्रिप्शन देना शुरू कर दे, तो वो वर्क नहीं करता है. गॉट इट? तो वन साइज फिट्स ऑल डजंट मैटर. रिमेंबर, वन साइज फिट्स ऑल इज नॉट अ सक्सेस स्टोरी. अगर ऐसा होता तो जो टॉप कर रहे बंदे वो भी शेयर करते हैं अपना स्ट्रैटेजी, और वही स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर लो, पास कर जाओ. लेकिन पास तो नहीं करते हैं. इसका मतलब है कि हर आदमी को अपना स्ट्रेंथ, अपना वीकनेसेस, दे गॉट टू आइडेंटिफाई इफ यू रियली वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. और ये अपना स्ट्रेंथ, अपना वीकनेसेस समझने में टाइम लगता है. अनलेस अनटिल अ मेंटोर एंड अ मेंटी, ओके, एस्टैब्लिश दैट रिलेशनशिप, तब तक वो चीज नहीं आता है. ठीक है, तो ये चीज याद रखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एनालिसिस, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टडी प्लान विल बी फॉर्म्ड, और फोकस उसका होगा रिवीजन, और दूसरा फोकस इसका होगा शॉर्ट नोट्स. ओके, आप देखते होंगे एवरी ईयर यू विल फाइंड ऑन इंटरनेट एवरी टॉपर पब्लिशेस देयर शॉर्ट नोट्स. ओके, without short notes, no one can clear this examination. But how to make short notes is a challenge. Okay, whether we should make short notes for prelims or whether we should make short notes for mains, that is again a challenge. को नोट पहले तो बनाए कैसे, उसके बाद बनाए तो फिर पीटी के लिए कैसा बनाए, मेंस के लिए कैसा बनाए. तो यहां पे शॉर्ट नोट्स फोकस्ड होगा, जो कि पीटी और मेंस दोनों को देगा. क्योंकि अगर शॉर्ट नोट्स नहीं होगा तब 10-15 बार रिवीजन करना इम्पॉसिबल टास्क है. ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स का बहुत बहुत जरूरी है. इन दिस मैनर यू कैन कंसोलिडेट. कि कोई आपसे पूछे कि ठीक है, आप मुझे बताइए कि लैंड रिफॉर्म्स है, वो उसके बारे में बताइए. कैन यू स्पीक अबाउट लैंड रिफॉर्म्स in continuously for 5 minutes?
तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दैट इज समथिंग दैट वी वुड लाइक टू कल्टिवेट इन आवर स्टूडेंट्स। ओके, तो ये दो चीज आपका होगा, इसी दोनों पे फोकस्ड होगा। याद रखिए एक चीज और है कि शॉर्ट नोट्स, अब बहुत कोई बच्चे रिलाई करने लगते हैं कि शॉर्ट नोट्स, टॉपर्स का शॉर्ट नोट्स उसी को पढ़ लेते हैं। टॉपर्स का शॉर्ट नोट्स पढ़ के टॉपर बन जाना चाहिए? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सिंपल, कि बन तो नहीं रहा कोई। इट मीन्स दैट शॉर्ट नोट्स इज समथिंग दैट इज इनहेरेंट इन यू, दैट इज समथिंग वी हैव टू फोकस on the basis of your level of preparation, on the basis of your understanding. You make short notes. Someone else's short notes will not work for you. It has never worked for anyone. It will not work for you. Make no mistake, confuse मत रहिए, नहीं वर्क करेगा। तो आपको खुद बनाना होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स फॉर पीटी एंड मेंस, दिस इज समथिंग। अनदर थिंग इज कंसोलिडेशन में अगर हम लोग करंट अफेयर्स का कंसोलिडेशन पे फोकस करेंगे। अब देखिए, करंट अफेयर्स इज अ वेरी वास्ट पोर्शन। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि पेपर पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए तो उसके बाद आप उससे नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं, और बनाना है तो कैसे बनाना है, ठीक है। और उसके बाद मंथली मैगजीन है, तो बहुत बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर कुछ करंट अफेयर्स के लिए मटेरियल दोगे क्या? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, मैं मटेरियल देके आप लोगों को कुछ ज्यादा सब्सटेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन आर पब्लिशिंग देयर डॉक्यूमेंट। इफ अगर वो जरूरत होगा, जो मुझे नहीं लगता उतना जरूरत है, अगर जरूरत होगा तो उससे आपका काम चल जाएगा। तो मुझे देने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत क्लैरिटी, बहुत ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूं, जो है वही बोल रहा हूं, ठीक है। तो वो आप वहां से रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं मैगजीन पे बिलीवर नहीं हूं मैं, क्योंकि आप मैगजीन से, मोस्ट ऑफ द पीपल से आप ब्लॉग्स पढ़ो, आप टॉपर्स से भी बात करो, करंट अफेयर्स मैगजीन से क्वेश्चन से नहीं बनते हैं। पर्टिकुलरली प्रीलिम्स का क्वेश्चन पकड़ना करंट अफेयर्स मैगजीन से बहुत टफ है, पेपर से निकालना होगा, एक्सट्रैक्शन हैज टू बी फ्रॉम पेपर, तो दैट विल बी टॉट। तो करंट अफेयर्स का कंसोलिडेशन विल बी देयर इन दिस। तो व्हेन आई से स्टडी प्लान, ध्यान रखिएगा, व्हेन आई से personalized study plan, so based on your strength and weaknesses, how the course will proceed and how the consolidation of the entire syllabus would be achieved. That is the point, that is the main focus. अब इसका डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि डिटेलिंग हर एक बच्चे के इंडिविजुअल स्ट्रेंथ वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के बाद होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, फोकस ये है। सेकंड आते हैं स्टडी मटेरियल। ओके, देखिए स्टडी मटेरियल हमने क्या बोला, सिंगुलरिटी ऑफ सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू रीड 2 books ऑफ हिस्ट्री, विल इट सफाइस? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, फायदा नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं तमिलनाडु का बुक पढ़ो, मेनी पीपल से कि एनसीईआरटी नया वाला भी पढ़ो, पुराना वाला भी पढ़ो, बहुत लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम भी पढ़ो। तो क्या क्या पढ़ें, यह बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। कोई लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस पढ़ो, कोई लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट के लिए जो एनसीईआरटी का जो 3 चैप्टर्स है वो पढ़िए, कोई बोलता है आईसीएसई का बुक अच्छा है। बहुत सारे इस तरह का मार्केट में फ्लोटेड आइडिया है। तो अब इसे समझना पड़ेगा, इट इज वेरी पर्टिनेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज नीडेड। तो हम लोग स्टडी मटेरियल में क्या है कि कुछ मटेरियल आपको दिया जाएगा, हम लोग सप्लाई करेंगे कुछ मटेरियल, हम लोग मतलब मैं सप्लाई करूंगा कुछ मटेरियल। नाउ दीज मटेरियल्स आर, रिमेंबर, दीज मटेरियल्स आर those materials which are not readily available in the market, ठीक है। वो एरिया जहां से कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन ना बुक में मिलता है, ना ही एक जगह एग्रीगेटेड मिलता है, दोज एरियाज, इसी का मैंने नाम कल भी बोला था, उसी का नाम है डीपीडी, डेली प्रीलिम्स डोज, ठीक है। लास्ट 6 मंथ में ये आपको मिलेगा, बिफोर एग्जामिनेशन लास्ट 6 मंथ में दिस विल, आई विल स्टार्ट गिविंग यू दिस वन, ओके। सेकेंडली, I will tell you exactly what source to use chapter wise, कि इस बुक से ये 3 चैप्टर, इस बुक से वो 4 चैप्टर, ऐसे पढ़ना है ताकि सिलेबस कंप्लीशन हो और सोर्स जो हो सबसे बेस्ट सोर्स हो। रिमेंबर इट, नो सिंगुलर कोचिंग इंस्टीट्यूशन मटेरियल इज सफिशिएंट। कोई किसी ने किसी चीज पे काम अच्छा किया है, किसी ने किसी और सब्जेक्ट पे काम अच्छा किया है, किसी ने किसी और सब्जेक्ट पे अच्छा काम किया है, तो हम लोग वो मटेरियल पिक करेंगे जो मटेरियल की बेस्ट इन द मार्केट है, जिससे कि हमारा अंडरस्टैंडिंग मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर बने और कंसोलिडेट रहे, ठीक है।
तो वो आपको बताया जाएगा चैप्टर वाइज, और एरिया भी आइडेंटिफाई करके दिया जाएगा कि कौन सा एरिया पे फोकस करना है, कौन सा एरिया पे कम फोकस करना है। एक मैं एग्जांपल देता हूं कि मिडिवियल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, अब इसमें है कि बहुत बड़ा है, क्या क्या फोकस करें। तो सिर्फ 2 फोकस एरिया कर ले तो 99% चांसेस है कि आप सबका सब सवाल सॉल्व कर लेंगे। वो 2 एरिया है कि कल्चरल एस्पेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे एरियाज है जहां पे कि आपको यह बताया जाएगा कि हाँ इस चीज पे फोकस करो, इस चीज का नोट्स बना के रखो, इस तरह से बना के रखो, ठीक है, ताकि आपका कंसोलिडेशन में हेल्प हो। तो स्टडी मटेरियल कुछ हम सप्लाई करेंगे और कुछ जो स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल, रिमेंबर आपको कार बनाना है तो आपको चक्का बनाने से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील. Wheel has been invented. You have to use it. You have to leverage it. Material is there in the market. You just know how to leverage those material for maximum benefit. ये एक इंटेलिजेंट आदमी का काम है, इस चीज पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल कुछ मिलेगा और कुछ जो मार्केट में अवेलेबल वो प्रिसाइजली कंसाइजली आपको वो चीज बताया जाएगा कि जो ये यूज कीजिए, ये यूज कीजिए और ये यूज कीजिए, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल का बात हो गया। नेक्स्ट, इट विल बी टारगेट बेस्ड। मैं आपको टारगेट प्रोवाइड करूंगा कि भैया हिस्ट्री मुझे 8 दिन में खत्म करके दो, इस अप्रोच से खत्म करके दो। टारगेट है तो जब तक टारगेट नहीं होगा तब तक आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। टारगेट हैज टू बी देयर एंड टारगेट शैल बी देयर, ठीक है। और उस टारगेट के अंदर आपको खत्म करके देना है विदाउट फेलियर, बिकॉज रिमेंबर डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर इनडिसिप्लिन कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा चीज हमने लिखा है कि डेली रिपोर्टिंग, वी हैव ए सिस्टम ऑफ डेली रिपोर्टिंग। डेली रात में 9 PM 9 बजे आपको रिपोर्ट करना होगा मुझे पर्सनली, क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, ताकि मैं आपका प्रोग्रेस चेक कर सकूं, ठीक है। आई ऑल्सो मेंटेन डायरी, यू विल ऑल्सो मेंटेन डायरी। ये डेली का काम है, ये डेली करना होगा। किसी दिन नहीं पढ़ पाए, इफ यू आर नॉट एबल टू स्टडी वन डे फॉर सम रीजन, देयर कुड बी मेनी रीजंस, ओके, तो you should be informing कि for the next 5 days sir I will not be able to study because I have examination, I have a marriage to attend or so many things to do, okay। तो वो भी चीज करना होगा। नाउ आते हैं आंसर राइटिंग। बहुत बच्चों ने बोला कि ये चीज, अब इसमें मैं बताता हूं। I will take few sessions, maybe 4, maybe 5 session, live session where I will be teaching you about answer writing ऑफ डिफरेंट डोमेन्स। की हिस्ट्री का एक दिन लेंगे कि हिस्ट्री में किस तरह का सवाल आता है और इसी तरह से आंसर क्यों लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, दैट इज हाउ इट गोज, ओके। वो चीज बताया जाएगा। और आंसर राइटिंग में जैसे कि मैंने बोला कि हर दिन 5 आंसर लिखोगे तो यू गिव इट अ ट्राई। मैं बोलता हूं यू गिव इट अ ट्राई एंड आफ्टर 100 days असेस योर इंप्रूवमेंट। और एक एक आंसर हर दिन लिखो, आफ्टर 100 days असेस योर इंप्रूवमेंट, ओके। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वाला चीज पे हम फोकस नहीं करते हैं। वॉल्यूम, आई टोल्ड यू दैट आई डू नॉट बिलीव इन वॉल्यूम, आई बिलीव इन वैल्यू, आई बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, नथिंग इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। हर चीज का एक अपना पर्पस होता है। बहुत लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते, बड़ा महंगा टेस्ट सीरीज आता है, मेंस टेस्ट सीरीज पर्टिकुलरली 30-30 हजार 25-25 हजार रुपए का टेस्ट सीरीज आता है, ठीक है। अब वो टेस्ट सीरीज कर लेते हैं और 10 टेस्ट लिख दिया, 15 टेस्ट लिख दिया, बहुत ज्यादा क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेम स्ट्रक्चरल मिस्टेक यू कमिट इन ऑल 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम जब इंप्रूव करते हैं आप, तो फिर 5% इंप्रूव किया आपने, तो वो उसके बाद फिर से सेम मिस्टेक आप सब में कमिट करोगे। एक एक क्वेश्चन अगर डेली करोगे तो उसका एक परिणाम बहुत अलग होता है। तो यहां पे क्या इवैल्यूएशन होगा? ये भी एक बहुत बड़ा बात है। तो सर इवैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस पे मैं रिव्यू दे सकता हूं, इवैल्यूएशन नहीं होगा। हां, मैं ये कर सकता हूं, आई विल रेकमेंड यू अ वेरी चीप प्रोग्राम। देयर आर सम वेरी गुड इंस्टीट्यूशन हु इज प्रोवाइडिंग वेरी चीप प्रोग्राम, जो कि बहुत सस्ता होता है, 4,000 3,000 ऐसे में। तो आई विल ऑफ कोर्स, मैं 6 महीने से 7 महीने लगभग बच्चों को रेकमेंड करता हूं कि लिखो आंसर। लेकिन कैसे लिखना है, कब लिखना है, कब स्टार्ट करना है, वो चीज फोकस्ड है। सेकेंडली, आई एम ए ट्रू बिलीवर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे अगर बहुत ज्यादा पकड़ है, आपको बहुत ही मैसिवली पकड़ है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। बहुत क्वेश्चन प्रीलिम्स में 25 to 30% क्वेश्चन इज रिपीटेड, बट यस नॉट वर्बेटिम,
हाँ वर्बेटिम भी रिपीट हुआ है लेकिन नॉट वर्बेटिम, बट उसको आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम उसको फोकस करेंगे कि 2013 से लेके 2023 तक 11 इयर्स का क्वेश्चन पेपर को जो भी मेंस रिलेटेड पूछा है उस क्वेश्चन को मैं बच्चों को एनकरेज करता हूं कि उस पे लिखे। सेकेंडली, प्रीलिम्स में भी आई फोकस ऑन 30 इयर्स ऑफ क्वेश्चन पेपर। व्हाई? आई हैव अ रीजन, जो बाद में पता चलेगा आपको व्हाट इज द रीजन, ठीक है। बट यस, कि मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, नॉट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। The benefits of solving UPSC question paper far exceeds any institution and it will remain for UPSC है, सीधी बात है, ठीक है। तो वो चीज, इसका हमने आपको क्लैरिटी दे दिया। एंड लास्ट इज टेस्ट सीरीज। देखो, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इज समथिंग जो कि मुझे नहीं लगता है बच्चों को खरीदना चाहिए। ओके, यू कैन बाय इफ यू वांट, but I don't think, because paying 10,000 12,000 rupees for test series is not a very good thing. Okay, why? क्योंकि कुछ बहुत फायदा नहीं होगा। टेस्ट सीरीज को अगर आप मार्क्स के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, आई एम स्कोरिंग गुड और आई एम स्कोरिंग बैड, वो एक बहुत ही खराब स्ट्रैटेजी है। टेस्ट सीरीज शुड बी सीन एज अ टूल टू रिवाइज, to collect few of the things that you have not collected before, to see a question from a perspective, dimensionality समझना है। मार्क्स सेंट्रिक रहेंगे तो आपको पास करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं ये आपको पहले भी कहा हूं, बाद में भी कहा हूं। तो वो जो टेस्ट सीरीज है मार्केट में अवेलेबल, आई विल रिकमेंड हियर प्रीलिम्स रिलेटेड टेस्ट सीरीज। व्हिच टेस्ट सीरीज टू बाय? बाय मीन्स नॉट 10,000 12,000 15,000 यू शुड बी पेइंग, मीन्स वो जो बुकलेट आता है 500-600 रुपए में टोटल आपका बुकलेट आ जाएगा। 1,000 रुपए रख लो, जो 30 टेस्ट 35 टेस्ट जितना भी होता है वो चीज, अब उसको सॉल्व कैसे करना है, उसमें से क्या बोरो करना है, क्या रखना है, ये सब चीज आपको उसमें बताया जाएगा, ठीक है। ताकि आपका मैक्सिमम वहां पे चांस हो कि कुछ क्वेश्चन निकल जाए आपको। जहां तक कि मेंस टेस्ट सीरीज का सवाल है, तो मेंस टेस्ट सीरीज में शुरू से बोलता हूं कि कीप focus on answer writing, not the test series. You learn the art of answer writing. As far as main test series concerned, you should be joining the test series between prelims to mains, not before that. Prelims से mains के बीच में क्यों कहता हूं मैं, उसका एक खास वजह है कि test series is actually about whether you are able to think or not, whether you are able to think on time or not, whether you are able to think in the structured manner or not, कि टाइम पे कंप्लीशन हो रहा है कि नहीं, स्पीड बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, हैंड राइटिंग ठीक है कि नहीं। दीज आर द कंपोनेंट्स, दीज आर द पैरामीटर्स ऑन विच यू शुड बी, दैट इज द बेस लाइन, दैट इज द पैरामीटर ऑन विच यू एसेस योर परफॉर्मेंस इन टेस्ट सीरीज, ठीक है। आंसर राइटिंग अगर अच्छा है और हम 10 क्वेश्चन लिख पाते हैं 3 घंटे में, तो फिर फायदा क्या है, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। हमें सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सब में एक जो 5% अच्छा लिखना है, कैसे यूज करना है टाइम का, किस तरह से 10 मार्कर को सॉल्व करना है, किस तरह से 15 मार्कर को सॉल्व करना है, ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। ये समझाया जाएगा टेस्ट सीरीज के टाइम में बिटवीन प्रीलिम्स टू मेंस कि व्हाट शुड बी फोकस, व्हाट शुड बी द एजेंडा। अगेन 1-to-1 सेशन में ही होगा, ठीक है। तो ये है आपका मेजर कंपोनेंट। अनदर थिंग आई वुड लाइक टू से कि बहुत लोग कह रहे हैं कि सर आपका टीम है या आप ही दोगे, तो याद रखिए 25 स्टूडेंट को ले रहा हूं इसीलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं ही मेंटोरशिप प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और 1-on-1 मेंटोरशिप है कि आप और मैं, देयर इज नो टीम इन्वॉल्व, देयर इज नो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व। जो भी होगा, टारगेट होगा, जो भी असेसमेंट होगा, जो भी बातें होगी, हमारा और आपके बीच में बातें होगा। Third is not involved, system is not involved. Do remember it. So these are the components of this program. I made this video to bring clarity to whatever we have discussed in the webinar. So I believe this is helpful for you. So if you have any doubt, anything, नंबर तो हमने आपको दे ही रखा था पहले भी, और फिर से नंबर लिख देता हूं 9773881981. This is your WhatsApp number. You can drop the message here. They will forward the number to me and I will speak to you if the need be. हाँ, जो लोग का enrollment हो गया उनको पर्सनल नंबर होगा तो directly we can have communication. Okay, so these are the components. So thank you.
Thank you very much.